हाँ, realize. Namaste and hello to one and all. This is Faryal Ghaus Syed from Madhu Samrajya, welcoming you all to the fresh episode of Akanksha Unlimited. जैसे कि आप जानते हैं कि आकांक्षा अनलिमिटेड के हर नए एपिसोड में हम एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड जो आज की युवा पीढ़ी को मोटिवेट करते हैं और अपनी फील्ड के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान देते हैं. But today we are not only having with us an expert but a very esteemed personality with us. He is the first Indian to be invited by the Oscar Academy as an invited member of Science and Technology Council in October 2020. He is also the first Indian to be appointed on Board of Directors by International Association of Cinema and Video Laboratory, the first Indian to be selected as a member of the Academy of Motion Picture Arts and Science in the Technical Division. Yes, we are having with us Mr. Ujjwal Nirbudkar. Sir, on behalf of Madhu Samrajya, we welcome you to the episode of Akanksha Unlimited. Good evening, Faryal, and to all the viewers who are watching me now. Thank you for joining. मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि उज्जवल सर ने अपने जिंदगी के 40 साल सफलतापूर्वक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिए हैं. He has played an important role in promoting green technology for film processing around the entire world. Sir, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको यही पूछना चाहूंगी कि from a technical manager to the Oscar jury, how did this journey took place? This is the journey I never dreamed of when I started in 1981 as a technical manager at Film Center Laboratory. Film Center Laboratory was managing almost 60 to 70% of the Indian films business. And those days, we used to make film prints, which were shown in the theater. So making a film print and to distribute it itself was a big task because each film print actually weighs around 32 kilos. So this was a big thing. And why I joined them, basically, because I'm a chemical engineer. Many people are not aware that film is made up of chemicals. The emulsion part of film is made up of chemical. And when you get an image on the film, you have to also process it through chemical process. So a chemical engineer actually can better control it. And I thought this is a big opportunity those days because I was the first chemical engineer from India to join in this sector. And definitely it has proved worthwhile. I continued in the business. I got promoted in the company, but more than that, I started contributing internationally. At Film Center, I came in contact with Society of Motion Picture and Television Engineers, an organization which sets standards for film, television, audio, and digital for the entire world. So my first interaction with SMPT was in 1993. That was also my first travel to US when I made a presentation at the Los Angeles conference. That changed my life because then I came in contact with so many technical experts from around the world over there, and the passion continued. I made 3 papers, one in 1993, then 1999 and 2002. In 2002, a paper which I presented also got US patent, and I was again the first Indian to get a US patent for motion picture technology. Also, that was another milestone which had changed my life. Then I kept on contributing to this industry passionately because India, what I thought, that India produces the maximum number of films in the world. And why we should be only recipient of technology? Why we can't contribute? Because we make the maximum number of films. And that is how that passion started. And ultimately in 2017, I was selected as an Oscar Academy member. I was invited to join them. That itself was a big milestone because to get selected as a member is a very rare thing. I think there are only 30 persons from India who are members, and I'm
really proud to say that I was the first technical person selected by the Oscar Academy to join in 2017. That's great, sir, and congratulations for all your achievements. So you are the Thank you. first Indian to get fellowship award from Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPT), which is an international organization which standards for film and television industry for the entire world. So how was your feeling? And I would like to ask, like, what exactly is SMPT and what is its role? As I was briefly explaining you just now, that Society of Motion Picture and Television Engineers is a worldwide organization which sets standards for film, digital, audio, and video for the entire world. So what they do is uh, they set standards, and which standards are followed all around the world, so that the experience of watching a movie is much better. You can get a very clean, clear picture. Also, you can listen to a very good quality of sound. And that is our aim, because uh, when the creative people like director, cinematographer, and all the actors, they work so hard to put on their efforts to make a very good film. It is also the responsibility of all the people who are involved in post-production to see that it exactly reaches the same way to the audiences. And that is the responsibility of SMPT, that to create a standard. As I told you, I made a presentation at the paper, and also I made contributions like my own technology, which got US patent. And for all these contributions, SMPT decided to give me a fellowship award in 2007 at New York. Again, I was the first Indian to get this kind of award. So I was definitely elated to receive that. And I would like to add that entire these efforts which I was doing, my family, particularly my wife Archana, was backing it, and she could also come to New York to witness this award, and I was really happy to do that. Uh, it was a memorable moment for me. Sir, you had also arranged a visit for Mr. John Belly, who is the president of Oscar Academy, and this visit turned out to be a historical one, which gave birth to new relationship between Indian film industry, and the Oscar Academy. So, how was Mr. John's reaction on this visit? See, first of all, I met John Bailey when I became a member in 2017. In September 2017, I was called with my wife again at the Academy's office for a new member reception. So that was my first interaction with John Bailey. He was the president then. And I have been talking to not only to John Bailey, but also to the CEO of the Academy, Don Hudson, that they should visit India to understand our industry. Because just talking on phone, sending emails, watching it on internet really won't give them a clear idea of how big is our industry. I also cited example that this is the only industry which makes films in so many different languages, like more than 23 different languages. And whenever I used to cite this example, I used to show them our currency note. Our currency note is the only note in the world which has got almost 18 different languages on it. So that was a symbol that our country respects so many different languages. And we also make films in those languages. So it was the first meeting in 2017, nothing much happened. Then 2018 also I went there uh, and I also was talking to them. And luckily for me, in 2019, again, I went, because these Oscar awards are in that around February, March every year. So around March, I went to Los Angeles and I had met the president. That time he was, I tried to tell him again and again that India is important, you should visit India. So luckily for in that year, 2019, March end, I was also invited on the red carpet to witness the Oscar award.
even during that Oscar Award celebration, just before the celebration, we reached there around 3 p.m. and the celebration starts at 5 p.m. So we have enough time to even interact. So that time also I interacted with the Academy president, and his secretary had actually arranged his personal visit to me next day after the Oscar Award, 9 a.m. at a breakfast at his house. And he was very kind enough to invite me to his house immediately after the Oscar Award ceremony, which is what's supposed to be the busiest day in his life. And next day when I went to his house, I was very much surprised. He's a very down-to-earth person. He himself prepared a coffee for me at his house. And we discussed about 1.5 hours about what we can do between India and the Oscar. And I was trying to convince him that we must visit India. This was in April 2019, March end 2019. And he asked me, how much time do you need to make a preparation for the visit? I said, give me 30 days, I will make the preparations in India. Immediately after that, when she said, yes, I can come, from the same day in the night, because America's night is day in India, I sent a WhatsApp message to the Chief Secretary of Chief Minister Maharashtra, Mr. Bhushan Gagarani, that this is possible that the Academy President can visit us in Mumbai. So can we plan some program for his visit? Then immediately, within few hours, I got a response from him that yes, the Maharashtra State Film Awards are not at schedule because of the election, and we can definitely schedule it when he comes over here. So this is how the visit was planned instantly. Then when I came to India, I was constantly talking to his secretary about on all 4 days. We planned that he will be visiting India for 4 days, like 25th, 26th, 27th, and 28th of May 2019. 25th and 26th, he was supposed to be in Mumbai. 27th, he wanted to visit Taj Mahal at Agra. And then 28th, the last day, he wanted to meet the government people, INB ministry people at Shastri Bhavan office in Delhi. And from there, in the evening, we planned a dinner with FICCI at Delhi, and same night he left. So the first day when he arrived, I personally went to receive him at the airport, and he was declared as a state chief guest. So we had all the protocol. There was a police escort available, and I was allowed to receive him right up to the aircraft. So this was again a good opportunity, and there was a protocol officer from government of Maharashtra with me to receive him. And then we took him to Trident Hotel in Mumbai, and he was booked in one of the best suite on the top floor of that hotel, the same suite which was used earlier by America's President Bill Clinton and Michael Jackson when they visited India. So he was thrilled, and my room was next to him in the same suite, and I was constantly in touch with him. So I was briefing him just before any visit that what he's supposed to do, what he's supposed to talk, and all that thing went very well. He had a meeting with the cultural minister then, Mr. Vinodji Tawde. Also, we had since he is a cinematographer and his wife is an editor, we had conducted a workshop for him at the Inox Nariman Point Theatre on next day morning, 26th morning. 26th afternoon was a lunch with the celebrities at JW Marriott in Juhu. Same day evening, he went to the National Museum at Films Division, Film Museum. And after that, he was to proceed for the award ceremony. So it was a packed program. Also, one day earlier, like 25th evening, we had arranged a dinner with all the film industry people at Trident Hotel. So it was attended by people like Ramesh Sippiji, Rahul Ravelji, and many. I can't even remember all those names. Fortunately for us, we have all the photographs and the videos.
We also kept Indian music, live music program for him to entertain him that day. And it was a packed visit. After this visit, when we wanted to visit Taj Mahal, he was also declared state guest by the UP state. So we were received by the Deputy Chief Minister of UP, Dr. Dinesh Sharma, and the Mayor of Agra. And they took us around the Taj. It was a special visit with escorts. And since he is a very high celebrity, he was given like the best of the escorts and security at Taj. And his suite was reserved in such a hotel that even in the evening after the dinner, he could watch the Taj from his room. So, and next day, then we took him to INB ministry at Delhi. Shastri Bhavan, we had planned a meeting. Then Chief Secretary, Mr. Amit Khare sir, then Prasoon Joshi sir, Mr. Atul Kumar Tiwari, Joint Additional Secretary, and Joint Secretary, Mr. Ashok Parmar. We discussed many things, what we can do between the academy and the government of India. And he was given a grand reception at the City Fort Auditorium, which is the same place again where Mr. Obama addressed the nation when he visited. So it was arranged in such a big way. He got very good celebration. And in the same evening, we had a FICCI dinner where industry people were invited by FICCI in Delhi. So he had a chance to meet so many people. He had many press conferences in between to interact with the press. And he was very much thrilled for this visit. And I think this has opened the doors for us to talk between the Indian film industry, Indian government, and also the Oscar Academy. Sir, as you were the jury of Oscar, I would like to know from your side that what are the various activities that Oscar Academy carries out and how does it function? Yeah, I think many people, मैं हिंदी में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि सबको समझ में आ सके. एक तो क्या है कि हमको लगता है कि ऑस्कर अवार्ड का जो एक शो होता है जो फरवरी या मार्च में हमेशा होता है एक संडे, लास्ट संडे को, तो वो जो शो होता है वो 4 घंटे का शो होता है और उसमें अवार्ड दिए जाते हैं. और ये एक ही एक्टिविटी सबको मालूम है पूरी दुनिया में, बट ऑस्कर इज डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज फॉर द अदर 364 days which many people are not aware. तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑस्कर खाली एक दिन में अवार्ड शो नहीं करता है, उनकी और भी एक्टिविटीज है. जैसे कि उनका एक स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन रहता है, निकोल स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन जिसको बोलते हैं. उसमें जो करीबन 7,000 स्क्रिप्ट उनको आते हैं पूरी दुनिया से और उसमें से चुन के, जिसमें वो चुनने में ऑस्कर जूरीज भी शामिल होते हैं और चुन के जब भी वो फाइनली 10 स्क्रिप्ट चुनते हैं, वो 10 ही स्क्रिप्ट को $35,000 पर स्क्रिप्ट ऐसा अवार्ड दिया जाता है. और ये अवार्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं. तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए. और इसमें ऐसा रहता है कि जो पार्टिसिपेशन करने वाले लोग पहले कभी कमर्शियल फिल्म नहीं बनानी चाहिए, मतलब जो न्यू कमर्स है उनके लिए ही रखा गया है ये कंपटीशन. दूसरा एक कंपटीशन है स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड. इसमें जितने भी फिल्म स्कूल्स है दुनिया में, इसमें भारत के फिल्म स्कूल भी शामिल होते हैं, कि उनको दिया जाता है, मतलब स्टूडेंट के लिए शॉर्ट फिल्म्स रहती है, वो फिल्मों को अवार्ड दिया जाता है. और मुझे बहुत खुशी होती है कि लास्ट ईयर का जो अवार्ड था 2020 का, वो इंडिया की एक जौनपुर की एक लड़की है करिश्मा दुबे, उसको मिला था. ऑफ कोर्स शी स्टेइंग इन न्यूयॉर्क, बट इट इज़ वेरी प्राउड दैट इंडियन गर्ल हैड वॉन एंड दिस इज एट द स्टूडेंट लेवल. तो उनके लिए आगे भी बहुत इसका फायदा होने वाला है. और इसके अलावा और एक एक्टिविटी है ऑस्कर की, वो है एकेडमिक गोल्ड मेंटरशिप. इसमें क्या होता है कि 50 से 60 यंग स्टूडेंट चुने जाते हैं और उनके लिए जो एकेडमी के जूरीज होते हैं उसमें से मेंटर्स भी चुने जाते हैं, मतलब वॉलंटरीली पूछते हैं कि किसको मेंटर करके काम करना है. तो मैंने लास्ट 3 साल से उनको मेंटर का काम करने का आश्वासन दिया था. तो पहले 2 साल में तो
एक इजिप्शियन लड़का था और दूसरे में फिलीपींस लड़का था, उनको मैंने गाइड किया। और तभी मैंने बोला था कि इंडिया से भी कोई शामिल हो तो बहुत अच्छा है। और मुझे बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये साल एक लड़की शिवा रेड्डी करके, शी इज फ्रॉम बेंगलोर एंड ऑफ कोर्स करंटली शी इज इन यूएस वर्किंग फॉर डॉल्बी एज ए इंटर्न। और ये प्रोग्राम अभी चालू हो गया है। और ये जो आने वाले 14 जनवरी को हमारा वर्चुअल, नॉर्मली इंटरेक्शन के लिए डिनर रहता है, बट अभी पैंडेमिक की वजह से डिनर कर नहीं सकते, तो वर्चुअल इंटरेक्शन रहेगा। उसमें जितने भी मेंटर्स हैं और जितने भी इंटर्न्स हैं सब लोग साथ में शामिल होंगे। ये 14 जनवरी को होने वाला है। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज ऑस्कर की, ऑस्कर अवार्ड के अलावा भी होती है। और एक सबसे बड़ी एक्टिविटी जो अभी आने वाले, मतलब यही साल में होने वाली है, वो है ऑस्कर एकेडमी का म्यूजियम। ऑस्कर एकेडमी का फिल्म म्यूजियम अक्टूबर 2021 में चालू होने की संभावना है। ये डिले जो हो रहा है वो पैंडेमिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से वहाँ भी उनको काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। $400 मिलियन, मतलब 3000 करोड़ से ज्यादा लागत का ये स्टूडियो म्यूजियम। इसमें 2 थिएटर से बड़े, और राइट फ्रॉम मतलब फिल्में कैसी चालू हुई मैजिक लैंटर्न से लेके फाइनल तक उनका वो दिखाया जाएगा उसमें। और इसमें और एक मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रखा जाए, इसकी इंफॉर्मेशन। जो पायनियर है दादा साहब फाल्के, उनका एक स्टैचू, ऐसी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। होपफुली वो सफल हो जाए। सर आपने इंडियन रीजनल मूवीज के ऊपर बात की थी। We know that India is a diverse country with so many languages as well as culture, and even you have a dream to create a platform for regional movies. So what is your opinion on it, and what are the future projects you are planning to make your dream, fulfill your dream? जी, अभी जो अपने फिल्मों के अवार्ड मिलते हैं अपने देश के लिए, वो केवल एक ही अवार्ड है जो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जिसे बोलते हैं। पहले उसको फॉरेन फिल्म अवार्ड करके जाना जाता था। अपने देश में तो करीबन 1500 से 1900 तक फिल्में बनती है हर एक साल में। उसमें से एक फिल्म चुनी जाती है ये अवार्ड के लिए भेजने के लिए, और उसका चुनना मुश्किल होता है। मतलब क्योंकि इसमें से एक फिल्म चुनना बहुत मुश्किल है, फिर भी चुनी जाती है। और वो फिल्म जब भी जाती है और उसको कभी अवार्ड मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी नॉमिनेशन मिलता है, तो तभी मैंने उनको बताया कि आप हर एक देश में से एक फिल्म मांगते हैं, लेकिन भारत से जो कि सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में फिल्में बनाता है अपने देश में, उनके कम से कम 10 फिल्मों को आप ऑस्कर के वही जूरी को दिखाइए। मतलब उनके लिए एक 3 दिन का फेस्टिवल रखिए ऑस्कर एकेडमी के थिएटर में, और 3 दिन में हम लोग 9 से 10 फिल्में देख सकते हैं। और अगर ऑस्कर की जूरी ये सब 10 फिल्में, अलग अलग फिल्में देखेंगे हर साल, तो उससे उनका जो परसेप्शन है ना इंडियन फिल्म के बारे में वो बदल जाएगा। एक ही फिल्म अपने देश के लिए काफी नहीं है, एक ही फिल्म अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी भाषाएं, इतनी रीजनल फिल्में बनती है। तो अगर ये भी प्रयास अगर सफल हो जाए, तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक इंडियन फिल्म का फेस्टिवल हो और वो जितने भी जूरी है ऑस्कर के ज्यादा से ज्यादा उधर देखें। उससे अपने को अवार्ड मिलने के भी चांसेस है। और अगर ये जूरी यहाँ पे सब फिल्में देखेंगे तो उनको अंदाजा भी आएगा कि इंडिया में किस प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं। So for the benefit of Indian film industry, you had initiated and executed one digital technology, that is Digital Dilemma, for translation of Oscar Academy's book into Marathi and Hindi languages. So can you make us aware what exactly this technology was? Yeah. अभी पहले तो फिल्म के मीडियम में बनती थी, और 2000 अमेरिका में 2005 साल के बाद और इंडिया में 2008 साल के बाद डिजिटल में फिल्में बनना चालू हो गया। अभी जब हम लोग पहले फिल्म यूज करते थे और अभी डिजिटल यूज कर रहे हैं, तो उसमें तकनीकी बहुत फर्क है फिल्में बनाने में, पोस्ट प्रोडक्शन करने में और दिखाने में भी। तो ये सब इसकी जो जानकारी है ऑस्कर एकेडमी और यूएस गवर्नमेंट ने मिलके
दुनिया के 100 एक्सपर्ट्स, ये फिल्म और डिजिटल के, उन्होंने मिलके एक बुक बनाया था, उसको हम लोग व्हाइट पेपर कहते, उसका नाम था डिजिटल डिलेमा। तो उन्होंने 2 बुक बनाए, एक डिजिटल डिलेमा 1 और 2। ये जो बुक्स है वो उन्होंने इंग्लिश में बनाए ऑफ कोर्स। तो जब भी मैं 2000 मेरा ऑस्कर से जो रिलेशन है वो मेरे मेंबर बनने से पहले से ही है, ऐसा नहीं कि मैं मेंबर बनने के बाद मेरा रिलेशन हो गया। तो 2012 में हम लोग उनके साथ एक डिस्कस कर रहे थे कि 2013 में इंडिया में फिल्मों को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोजेक्ट हम लोग ऑस्कर एकेडमी के साथ कर सकते हैं। तो तभी मैंने उनको सजेशन दिया था कि ये जो डिजिटल डिलेमा रिपोर्ट है वो हम लोग मराठी और हिंदी भाषा में हम लोग उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो मराठी के लिए ट्रांसलेशन का एग्रीमेंट महाराष्ट्र शासन से हो गया, वो काम पूरा भी हो गया। और अभी ऑस्कर के जो प्रेसिडेंट आए थे जॉन बेली, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन भी वही फिल्म फेस्टिवल में किया। हिंदी का भी एक बुक कंप्लीट है, उसका इनॉग्रेशन दिल्ली का जो फंक्शन हुआ था उसमें जॉन बेली साहब ने किया, और दूसरा बुक का काम चालू है। मेरा ये कहना था इसके पीछे कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं रहेगी। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो उसका मतलब ऐसे नहीं कि उसको टेक्नोलॉजी जानने का हक नहीं है। तो ये अगर प्रादेशिक भाषा में हम लोग बुक का ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो उससे बहुत लोग, ज़्यादा लोग ये पढ़ सकते हैं, और अपने जितने भी टेक्नीशियंस हैं इंडिया के और भी भाषाओं में उसका अनुवाद करने का प्रयास जारी रहेगा आगे ये काम का होने के बाद। लेकिन मराठी और हिंदी, क्योंकि बॉलीवुड इज इन मुंबई, महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है और हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, इसके लिए ये दोनों लैंग्वेज को चुना गया था। ऐसा नहीं कि इससे आगे और भी लैंग्वेजेस में, पर्टिकुलरली साउथ की लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो सकता है आगे। सर, करंटली आप चीफ टेक्निकल एडवाइजर एज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, जो एक 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जब भी जैसे मैंने बताया कि जब भी 2013 का 100 साल पूरा होने वाला था, तभी गवर्नमेंट ने भी सोचा था कि अपना देश अगर सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है तो जो नेशनल फिल्म आर्काइव जो पुणे में स्थित है, वहाँ भी अपनी करीबन 18,000 से ज्यादा फिल्में अभी हैं। अगर ये फिल्में, उसमें से कोई बहुत सी कम फिल्में हैं जो डिजिटल में ट्रांसफर हुई है, तो आज भी अपने को देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी सब जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिजिटल में हो रहा है। तो उसका पूरा डिजिटाइजेशन करना, रिस्टोरेशन करना और वो सबको दिखाने के लिए या तो डिजिटल मतलब मल्टीप्लेक्स में दिखाने के लिए डीसीपी उसका बनाना, या तो वेब पोर्टल में दिखाने के लिए वो लो रिजोल्यूशन में बनाना, या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि एनएफडीसी, इसका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी भी कार्यरत है, सिनेमाज ऑफ इंडिया, उसमें से हम लोग दिखा सकते हैं, दूरदर्शन पे दिखा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए उनका डिजिटाइजेशन और रिस्टोरेशन करना बहुत जरूरी था। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रैल 2016 साल में चालू किया, और तभी से मेरा फिल्म लैब का जो जॉब है एज ए टेक्निकल डायरेक्टर छोड़ के मैं इस यहाँ पे ज्वाइन हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत पैशनेट प्रोजेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फिल्मों का डिजिटाइजेशन और रिस्टोरेशन करने वाला। दुनिया में कहीं भी कौन सी भी गवर्नमेंट इतना बड़ा काम नहीं कर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया का जो नारा लगाया है, इसके तहत इसको अभी फंडिंग भी हो चुका है। ऑलरेडी डिजिटाइजेशन का काम चालू हो गया है, और बहुत जल्द ये 5,000 फिल्में, उसमें कोई शॉर्ट फिल्में भी है, ये अपने को देखने को मिलेगी जो अभी तक किसी ने देखी ही नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा खजाना है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। उसमें हर एक भाषा की फिल्म है, केवल हिंदी नहीं है, साइलेंट फिल्में भी है। तो ये सब फिल्में जब भी अपने को देखने को मिलेगी अलग अलग मीडिया में, डीसीपी में, फिल्म फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में, उससे बहुत से नए लोगों को मालूम होगा कि अपने देश में कैसी टाइप की फिल्में बनाई गई है शुरुआत से लेकर। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस पे काम करने का मुझे मौका मिला है। मेरा जितना भी इतने साल का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल नॉलेज है, मुझे यूज़ करने को एक मौका मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ
ऐसा काम करने में मुझे काम करके महसूस ही नहीं हो रहा है। ये तो मेरा पैशन है और आई एम एंजॉयिंग माई पैशन। सर, आप उन खुशनसीबों में से हैं who got the chance to meet Royal Highness Prince Andrew, who is the second son of Queen Elizabeth. तो क्या आप वो मेमोरीज हमारे साथ वापस एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं? हाँ, इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा। मैंने जब मुझे 2002 में मेरे को अमेरिकन पेटेंट मिला था, तभी मुझे IIM अहमदाबाद ने अप्रोच किया था। तभी उन्होंने वो साल में जितने भी लोगों को पेटेंट्स मिले हैं, भले वो अमेरिकन हो, इंडियन हो या और भी कई पेटेंट है, ऐसे 135 लोगों को आमंत्रित किया था IIM अहमदाबाद में। और उसमें कंपटीशन करके सिलेक्शन करके फाइनली 3 प्रोजेक्ट को उन्होंने सिलेक्ट किया जो इंक्यूबेशन के लिए, मतलब उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली का जो डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से। तो जब ये IIM अहमदाबाद की वेबसाइट में उन्होंने सब इंफॉर्मेशन लिखा था, तभी मुझे लंदन से अर्नस्ट एंड यंग, ये जो कंसल्टिंग कंपनी है, उनका फोन आया। और इसके लिए मेरी एक खुद की कंपनी मैंने बनाई है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे उन्होंने, अर्नस्ट एंड यंग ने पूरी दुनिया में 10,000 कंपनी को फोन करके उनका इंटरव्यू लिया, और उसमें से 100 कंपनी का सिलेक्शन हुआ यूके गवर्नमेंट के ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए। और उसके लिए मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और जब भी सिलेक्शन हो गया तो मुझे यूके काउंसुलेट ने बुला लिया, पहले तो मुंबई में। और उन्होंने बोला कि आप ये प्रोजेक्ट आके इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है, आप अगर यूके गवर्नमेंट के साथ कुछ करना चाहो तो हम आपको लंदन में जगह देंगे। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लंदन में उनके गवर्नमेंट के खुद ऑफिसर्स मेरे साथ आए और एक कंपनी स्थापन की। तभी उसका काम, तभी मेरे को जो काम मिलने वाला था वो BBC की जितनी भी ओल्ड फिल्में हैं, BBC ने जितने भी न्यूज़ बनाए हैं, वो पहले जो बनाए थे 16mm फिल्म में बनाए थे, और अभी डिजिटल हो रहे, तो उनको वो डिजिटाइज करने थे। लेकिन वो काम मैं करने ही वाला था, तो तभी ये भी प्रोजेक्ट अपना चालू हो गया, इंडिया का नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। तो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस तो पहले इंडिया का प्रोजेक्ट का काम करना है। तो मेरी कंपनी उधर लंदन में भी चालू है, और वो काम भी मैं आगे जाके उधर कर सकता हूँ। और उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात यूके गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंस एंड्रूज, हिज हाइनेस प्रिंस एंड्रूज, हु इज द सेकंड सन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, and he is the business representative of the UK government for the entire world. Like, he meets Bill Gates and so many people. So I was really fortunate to meet him, and I talked to him, and I personally told him that before independence, जो 1947 के पहले ब्रिटिश वॉज रूलिंग इंडिया, तो हमारी कई फिल्में, शॉर्ट फिल्में या जो भी है उस जमाने की, शायद लंदन में भी पड़ी हो सकती है, क्योंकि दोनों तो एक ही देश था तभी। तो अगर हम लोग ये एक्सचेंज कर पाएंगे, अभी पहले ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर फिल्म फॉर्मेट में है तो फिल्म देने को कोई तैयार नहीं था दूसरा कंट्री अपने को। लेकिन अभी डिजिटल में हम लोग उसका कॉपी बना के वो इंडिया में ला सकते हैं। तो इसके बारे में सिलसिले में मैंने बात की, और एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला उनके साथ और एक प्रोग्राम में भाग लेने का। क्वीन एलिजाबेथ का जो राज्यारोहण समारंभ हुआ था, उसकी एक फिल्म थी वहां पे। वो फिल्म का 2D to 3D उन्होंने कन्वर्जन किया था, और वो देखने के लिए बुलाया था। तो मेरे आगे की रो में रॉयल फैमिली, और पीछे में उनके पीछे वो सब पूरा जो देखने का मौका मिला, पूरा 2D to 3D, वो भी एक बहुत बड़ा मौका था। मेरा असल में ये सौभाग्य है कि इतनी बड़ी फैमिली के साथ मिलने का मौका मिला हो, उनसे बात करने का मौका मिला, और ये सब मेरी टेक्नोलॉजी की वजह से मिला है। मेरा दूसरा कोई रिलेशन नहीं है पूरी दुनिया के साथ। ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं जितना भी जगह जगह पहुंचा हूँ, ये टेक्नोलॉजी की वजह से पहुंचा। सर, आप एज अ टेक्निकल एडवाइजर आपने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में काम किया है, लाइक गोवा, केरला, पुणे में। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मतलब बहुत अच्छी है, और ऐसी कौन सी लैकिंग थिंग्स जो आपने एक्सपीरियंस किया हो? देखो, जब भी फिल्म फेस्टिवल में फिल्में दिखाई जाती है, वो एक अलग टाइप का रहता है कि अगर एक ही थिएटर में सुबह से शाम अलग अलग फिल्में दिखाई जाती हैं,
जैसे हम लोग शो करते हैं कोई भी मल्टीप्लेक्स में या कहीं भी, तो नॉर्मली एक ही फिल्म एक ही मल्टीप्लेक्स में सुबह शाम दिखाई जाती है। तो अगर सुबह शाम अलग अलग फिल्में दिखाई जाती है तो उनके लिए कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। और एसएमपीटी ने, सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन इंजीनियर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, डी प्रो करके, डिजिटल प्रोजेक्शन वेरीफायर। तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग वो इस जो थिएटर्स है फिल्म फेस्टिवल के, उनका कैलिब्रेशन करते हैं। उससे क्या होता है कि जो फिल्में देखने को मिलेगी वहाँ पे वो बहुत अच्छी रहेंगी, मतलब उसका पिक्चर और साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें भी वही सेम पैशन है कि जिन्होंने काम किया है ये फिल्मों के लिए, और अगर इनको अवार्ड मिलने वाला है उनकी वो देख के, तो अच्छी तरह वो दिखानी जानी चाहिए। अभी मैं गए 10 साल से ऑलरेडी ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से होता है, उसमें टेक्निकल कमेटी में शामिल हूँ। ये साल फेस्टिवल थोड़ा डिले हो गया है, अभी 3 दिन के बाद मुझे जाना है गोवा, क्योंकि 15 तारीख को फेस्टिवल चालू होने वाला है। तो ये साल भी ऑल्दो पेंडेमिक है फिर भी हम लोग उसका कैलिब्रेशन का काम करेंगे, और ये फेस्टिवल होने वाला है थिएटर्स में। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और इससे बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हम लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, फिल्म जो बनाने वाले लोग हैं, डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर है, एक्टर्स है, पोस्ट प्रोडक्शन पीपल है, उनका जो काम किया हुआ है जो प्रेक्षकों तक सही मार्ग से पहुंचाने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं, तो इसका भी एक सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। और ये बहुत बहुत बड़ी खुशी की ये है। मैं खाली गोवा के लिए नहीं, तो उसके बाद में मुझे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केरला उन्होंने ही बुलाया, चेन्नई में बुलाया, बेंगलोर में बुलाया, मामी जो मुंबई स्थित फिल्म फेस्टिवल होता है उसके लिए भी काम किया हूँ। तो ये तो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है और काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये फेस्टिवल में काम करने के लिए हमको, जब थिएटर्स पूरे बंद हो जाते हैं रात को 1 बजे के बाद जो सुबह 10 बजे तक पूरी रात भर काम करना पड़ता है, वो टफ काम है, फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि ये जो पैशन है ये बहुत बड़ा पैशन रहता है फिल्मों का। सर, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, मराठी विधान परिषद अवार्ड, असोचेम अवार्ड एंड डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स से आपको कितना मोटिवेशन मिलता है? इन सारे अवार्ड में से सबसे यादगार अवार्ड आपके लिए कौन सा है? इससे मैं पर्टिकुलर अवार्ड को ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सबसे पहला मुझे अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जो जब भी मुझे पेटेंट मिला था 2005 में, तभी विलासराव देशमुख, तभी के चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने एक स्पेशल अवार्ड डिक्लेयर किया था, जबकि ऐसा कोई अवार्ड था नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फिल्म फेस्टिवल में, लेकिन ये अवार्ड क्रिएट करके मुझे दिया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये केवल मेरा सम्मान नहीं है, तो ये इंडस्ट्री में जितने भी लोग टेक्निकल काम कर रहे हैं उनका सम्मान है, और मैं खाली एक जरिया हूँ वो एक्सेप्ट करने का, बाकी तो। और ये सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंडस्ट्री खाली वो एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर से नहीं बनती। लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है, और उनके काम का दखल लेना भी बहुत जरूरी है। और कभी भी जब भी अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए, और अपने को उत्साह आता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है। एक उसका ये एक एक्सेप्टेंस मुझे मिलता है अवार्ड की तरफ से। अवार्ड मेरी कॉलेज जिसमें मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा की, उन्होंने भी डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड मुझे दिया था। तो वो मतलब जो कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं वहीं जाके ऐसा एक्सेप्ट करके अवार्ड लेना, और वो कॉलेज में जब ये अवार्ड मिलता है तो वो फोटो के साथ परमानेंटली अभी तक वो लगाया हुआ है वो कॉलेज में, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और खुशी होती है। आज सुबह मैं मेरे स्कूल में, पार्लेटिव विद्यालय करके है, वहाँ पे एक नया ज्योग्राफी का एक दालन बनाया था उन्होंने, उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग 30-40 साल के बाद स्कूल में जाते हैं, वापस वही जगह जाके वो टीचर्स को मिलते हैं और कुछ काम करने का मौका मिलता है उधर।
ये हमेशा सेटिस्फेक्शन होता है। अपने पर्टिकुलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके लेना मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उधर जो है वो आपने खुद पढ़ाई की है, आपको वो याद आती है कि इतना काम मैंने इधर किया था और आज इधर ही मैं अवार्ड ले रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है ये संस्था के लिए। खुशी तो होती है, हर एक अवार्ड की खुशी है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर अवार्ड मेरे लिए ज़्यादा खुशी दे रहा है या कम खुशी दे रहा है। अवार्ड आते रहे तो अपनी ज़िंदगी भी आगे मतलब चलती ही रहती है, और अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा हूँ कभी भी, काम पैशन से कर रहा हूँ। अवार्ड आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। Sir, these days films are losing their originality, but at the same time, we have movies like Dangal and Mary Kom. What is your opinion on it? हाँ, एक तो देखो कि एक जमाना ऐसा था जहाँ फिल्में बनती थी केवल एंटरटेनमेंट के लिए और पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये चेंज हो गया है। इंडिया के जितने भी नए नए डायरेक्टर्स आए हैं उन्होंने अलग अलग विषयों पे फिल्में बनाई है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो रीजनल फिल्में हैं वो देख के होती है, क्योंकि रीजनल फिल्मों में जितने भी सब्जेक्ट विषय चुने जाते हैं वो अपने मिट्टी से बहुत नज़दीक होते हैं, वो अपने देश के विषय है, अपनी भाषा के विषय है, अपने अपना जो लाइफ हो रहा है जो विलेजों में या कहीं भी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, गांव में, उसका जो प्रतिबिंब है उसमें फिल्म में होता है। और एक मुझे हमेशा लगता है कि इंडिया को जब भी कभी ऑस्कर अवार्ड अगर मिलेगा तो वो इंडिया की रीजनल फिल्म को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है अपनी मिट्टी से और बहुत अच्छी बनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली उनका मार्केटिंग इतना सही तरह से नहीं हो रहा है, यही मेरे लिए दुख की बात है। Sir, what is your favorite movie when it comes to technical aspect? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल पर्टिकुलर मूवी, क्योंकि अलग अलग मूवी अभी हजारों मूवी देखी है अलग अलग जगह में, तो ऐसा पर्टिकुलर देखना बोलना मुश्किल है। लेकिन जो एक्टर्स में फेवरेट अमिताभ बच्चन जी है, और अमिताभ बच्चन जी के साथ एक कॉन्फ्रेंस में बात करने का मौका मिला मुझे 2013 में एम्स्टर्डम में। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट कन्वेंशन करके था 2013 में, हम लोग 100 साल पूरा कर रहे थे अपनी इंडस्ट्री का। तो अमिताभ जी के साथ में बैठ के उनको वो एक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, कैसा कैसा बदलाव आए, और मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी में कैसे बदलाव आए 100 साल में। और जब भी मैं अमिताभ जी के बाजू में बैठ के ऐसी बात कर रहा था तो मैंने सोचा अगर मैं दादा साहब फाल्के जी की बात करूं और तो अमिताभ जी तो खाली सुनते रहेंगे। तो मैंने शुरुआती शोले फिल्म से की। शोले फिल्म में तभी 6 ट्रैक मैग्नेटिक साउंड एक नई टेक्नोलॉजी थी, उसका इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद में मैंने दूसरी अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। वो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और करीबन उस दिन 3-4 घंटे अमिताभ जी के साथ रहने का मौका मिला, वो भी एम्स्टर्डम में। और बहुत अच्छे से उनसे बात हो गई। और भी बहुत बार हमको उनसे मिलना होता है, एक काम की वजह से या पिक्चर जब भी देखते हैं या फिल्म फेस्टिवल में, बहुत अच्छा लगता है। वो एक फेवरेट एक्टर है। दूसरा एक जो मेरे जो फेवरेट सिंगर किशोर कुमार जी, उनको लाइव सुनने का मतलब रिकॉर्डिंग सुनने का मौका मिला फिल्म सेंटर में। मेरे फिल्म लेबोरेटरी का काम सुबह 10 से 6 चलता था, तो 6 बजे के बाद मैं रिकॉर्डिंग सेंटर में जाके बैठता था, और तभी लता जी, आशा जी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी सर, इनके लाइव रिकॉर्डिंग सुनने को मिले हैं। इसके तो कोई मतलब उसके वैल्यू कोई कर ही नहीं सकते आजकल, है जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी अलग अलग पीसेस में रिकॉर्डिंग होती है, वो जुड़ी जाती है। उस जमाने में सब म्यूजिशियन, करीबन 100 म्यूजिशियन और एक्टर सिंगर रहते थे, सिंगर रहते थे, और वो बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। वो तो अभी मेमोरी में रहेगा, अभी देख आज की जनरेशन को वो देखने को नहीं मिलेगा। Sir, you are always promoting green technology. So, what is the speciality of green technology in film processing? What are its benefit in the film industry? हाँ, अभी जैसे कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरा कंट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्री के लिए क्या होगा। तो 2004 में हम लोग का जो लेबोरेटरी था फिल्म सेंटर, वो ताड़देव से
गोरेगांव शिफ्ट होने वाला था। तो गोरेगांव में एक नई बिल्डिंग बन रही थी लेबोरेटरी की, और उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने को मिल रहे थे। तभी मैंने सोचा कि कोई केमिकल में भी चेंज करके हम लोग देख लेंगे, अगर अच्छे से होगा तो फायदा होगा उसका। और जबकि हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम था, तभी एक केमिकल था पोटेशियम फेरिसाइनाइड करके, वो ब्लीचिंग के लिए यूज होता था, और वो एक घातक केमिकल था, पोल्यूटिंग केमिकल था। तो उसकी जगह पे मैंने एक नया केमिकल यूज किया, 1,3-PDTA, प्रोपिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये केमिकल बना रही थी एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक्सो नोबेल, डच कंपनी है। उनको खुद को मालूम नहीं था कि ये केमिकल का यूज इधर हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने वो सक्सेसफुल करके दिखाया। और बाद में उनको बताया कि ये अगर केमिकल हम लोग पूरी दुनिया में कर सकते हैं, अगर मैं इंडिया में कर सकता हूँ तो मैं पूरी दुनिया में यही टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ। तो तभी तो मुझे उन्होंने बोला कि जो एशिया पैसिफिक ऑफिस है उनका, जो सिंगापुर में स्थित है, वहाँ से ईमेल और ऐसी बात करने के लिए बोला। लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत छोटी बात थी, उनके बहुत से अलग केमिकल दूसरी जगह यूज हो रहे थे। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला, उनके सीईओ हैंस वाइजर्स करके, वो इंडिया में 3-4 साल के बाद एक बार आते। तो 2006 साल में 23 दिसंबर को, मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है, मुझे उनके साथ एक डिनर का न्योता आया था ताजमहल होटल मुंबई में, और तभी मुझे 10 मिनट दिया गया था उनसे बातचीत करने के लिए। तो वो 10 मिनट में मैंने उनको ये बताया कि एक्सो नोबेल अगर ये केमिकल पूरी दुनिया में यूज करेगा तो उसकी ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है ये जॉब करने के लिए। तो तभी उन्होंने, उनको वो बात पसंद आई। 23 दिसंबर को रात को मेरी बात होगी, वही रात 2006, वही रात वो वापस गए एम्स्टर्डम। बाद में क्रिसमस था 10 दिन, और 2 जनवरी 2007 को वो कंपनी का मुझे एक लेटर आया, आई हैव बीन अपॉइंटेड ग्लोबल कंसल्टेंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी। इनिशियली उन्होंने 2 साल के लिए अपॉइंट किया था, 2007 और 2008। तभी जब मैं अमेरिका गया यही टेक्नोलॉजी लेके, तभी और एक चैलेंज था कि जो फिल्म बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कोडैक, उन्होंने बोला कि आपने अगर एक्सपेरिमेंट्स इंडिया में किए तो हम लोगों ने तो वो देखे नहीं है, अगर आप वही सेम एक्सपेरिमेंट हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो अमेरिका स्थित है रॉचेस्टर में, न्यूयॉर्क में, वहाँ करें। तो फिर 3-4 महीने वही एक्सपेरिमेंट उधर भी किए, वो सक्सेसफुल हो गए। और एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मैंने 2004 में चालू की थी, वो हॉलीवुड ने 2008 में एक्सेप्ट कर ली। जो मेक इन इंडिया का जो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने उसी टाइम करके दिखाया था। और कोडैक ने अपनी मैनुअल चेंज की। एक दोनों मल्टीनेशनल को चेंज करना एक इंडिविजुअल को, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और मेरा सौभाग्य है क्योंकि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इट वाज नॉन पोल्यूटिंग थिंग। और इसका मुझे, इसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हॉलीवुड में, हॉलीवुड गोज ग्रीन, उसमें मुझे न्योता दिया था बात करने के लिए ये टेक्नोलॉजी के बारे में। और तभी पूरे हॉलीवुड को सबको मालूम हो गया इसके बारे में। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और इससे क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी, मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं कोई सही कर रहा हूँ तो मैं इंडिया से लेके भी उल्टा वर्ल्ड को चेंज करा सकता हूँ। बाद में उन्होंने वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट और 5 साल बढ़ाया। 2007 से 2014 में ये टेक्नोलॉजी दुनिया की जितनी भी फिल्म लेबोरेटरीज थी वहाँ पे ये सब बदल करवाया। और काफ़ी मतलब मेरा जो ट्रैवल रहा उस टाइम, साल में 8-8, 10-10 बार अमेरिका जाता था और बहुत से देशों में जाके ये सब करवाया, और बहुत अच्छा लगा ये सब करके। सर, आपके हिसाब से आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कौन से ऐसे बदलाव लाना चाहोगे जिससे बॉलीवुड और भी सुपीरियर और क्वालिटेटिव बने? क्वालिटी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी क्वालिटी अच्छी है, ऐसे नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसमें क्या है कि जो कैलिब्रेशन पार्ट है वो ठीक तरह से नहीं होता है कभी कभी। मतलब मैं अगर ये इमेज देख रहा हूँ आज, आप लोग अलग अलग मोबाइल पे देख रहे हैं तो सेम कलर दिखने चाहिए। अगर वो अलग अलग थिएटर में दिख रहे हैं तो सेम कलर दिखने चाहिए, सेम आवाज सुनने को आनी चाहिए।
तो ये कैलिब्रेशन का काम बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए भी मुझे और एक खुशी होती है कि हाल ही में, मतलब जस्ट 2 महीने पहले, एक नई समिति ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो ISI बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से हो गई है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। और वो कमेटी का मैं एक हिस्सा हूँ, और उनके जरिए पूरे देश में ये फिल्म, टेलीविज़न, OTT प्लेटफॉर्म और जितने भी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड लाने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए बहुत गवर्नमेंट का भी सहयोग हो रहा है, और जितने भी इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं उनका भी सहयोग हो रहा है। और ये अभी चालू हुआ है, 2-3 महीना पहले ही चालू हुआ है। कम से कम 1 साल तो हमको लगेंगे इसका दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट। And sir, what are your dream projects like now you're working on? ड्रीम, एक तो मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, तो मैं तो कोई फिल्में नहीं बनाने वाला हूँ। लेकिन मेरा जो पहले से रहा है कि इंडिया के जितने भी टेक्नीशियंस हुए हैं उनको उनका सही तरीके से उनका मान सम्मान, उनके बारे में कई हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक आधी बुक हो जाए उनके बारे में, उनके बारे में लिखा जाए। और गवर्नमेंट भी, जैसे ऑस्कर अवार्ड में, ऑस्कर का जो पूरा नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, तो ये साइंसेस एक बड़ी बात है उनके लिए भी। फिल्मों में भी साइंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम लोग इंडिया में भी ये मान ले, और जैसे अवार्ड होते हैं ज़्यादा करके एक्टर एक्ट्रेस और सिंगर और उनके लिए होते हैं, टेक्नीशियंस के लिए कोई अवार्ड नहीं होता है। अगर ऐसा कोई हो जाए तो उसके लिए कोशिश करना। और मुझे खुद को चाहिए नहीं, मुझे वो जितने भी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं ये इंडस्ट्री में, उनके लिए आगे लाने के लिए कुछ करने की मुझे इच्छा है, अवार्ड जैसे, और उनको रिकॉग्निशन देना चाहता हूँ जितने भी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे। That's a very good initiative, sir, you're thinking about. Sir, you have successfully given 40 years, that is 4 decades, for Indian film industry. What is your opinion on it? What is my? Your opinion on giving 40 years for film? Yes. एक तो क्या होता है कि जब भी हम लोग पैशनेटली कोई भी काम करते हैं तो हम साल महीने गिनते नहीं है। वो काम अपने को करना है जब तक हमारे में ताकत है, एनर्जी है, और काम करने का मौका मिल रहा है तो काम तो करते रहूँगा। कितने साल हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और काम तो वही है कि एक तो क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री है फिल्मों की, कितने भी क्रिएटिव लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर मेरी टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी क्रिएटिविटी लोगों तक और अच्छी तरह से पहुंच सके तो उससे ज़्यादा मतलब ये सम्मान क्या होगा। मतलब मेरे को जो सम्मान मिल रहा है उससे ज़्यादा मेरे को इसकी इच्छा है कि ये सब टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से पहुंचे। और अभी जो कर रहा हूँ, जो नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के लिए जितनी भी जुनी फिल्में हैं, पुरानी फिल्में हैं, उनको पुनर्जीवित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब खाली फिल्मों को नहीं पुनर्जीवित कर रहे, उसकी उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, उस जमाने में जो काम कर रहे थे लोग, उनको सबका इसमें मालूम पड़ेगा लोगों को। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चालू किया है और उसमें मैं अभी शामिल हूँ। वो भी एक अच्छा काम है। मैं तो कुछ गिनता नहीं हूँ कितने साल हुए, कितने साल होएंगे, और काम तो करते रहना है जब तक एनर्जी है, काम करना है। इनफैक्ट ये इंडस्ट्री में काम करने से आप ज़्यादा जवान रहते, ज़्यादा साल जवान रहते, ऐसा मेरा खुद का मानना है। Sir, any message that you would like to give to the young audience who's listening and watching to you today? एक क्या हो रहा है आजकल, जो भी लोग काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी सेक्टर में हो, उनको ऐसा है कि मेरे को कुछ ज़्यादा पैसा मिला तो मैं जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहा हूँ, फिर तीसरी जगह जा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं होते। मैंने जब भी तय किया था, मेरा लाइफ चालू जब भी हो रहा था केमिकल इंजीनियर करके, तभी मैंने तय किया था कि जो भी क्षेत्र में मैं काम करूँगा मुझे दुनिया में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे लगाव से आप काम करो तो आपको यश तो मिलना ही है। और पैसे के लिए पीछे मत पड़ो, 1000, 2000, 5000 रुपया सैलरी बढ़ रहा है तो काम मत छोड़ो। आपको जो पैशनेट है वो काम करते रहो।
पैसा और मान सम्मान अपने आप पीछे आएगा आपके। Sir, at the end, I would like to ask you, how did you feel by spending time with Maza Samrajya? मुझे बहुत, एक तो जब भी आपने पहले एक हफ्ते पहले बात की मेरे से कि ऐसा कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी लोग, जैसे मैंने बताया कि एक्टर एक्ट्रेस उनके पीछे रहते इंटरव्यू के लिए, लेकिन एक टेक्नीशियन का इंटरव्यू लेके जो एंगल है टेक्नीशियन के बारे में, वो माजा साम्राज्य बता रही है। ये यही उनका भी यश है मुझे लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज सब ये बात करके, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपने दिखाया है, और मैं पर्टिकुलरली आपके बारे में भी बोलूँगा कि इसमें हम लोग ने काफ़ी कोशिश की है, मतलब 2-3 बार क्वेश्चन बैक एंड फोर्थ करके कि भाई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यंग जनरेशन तक पहुँची। तो जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एंड बेस्ट विशेष फॉर माजा साम्राज्य फॉर मेनी मोर सच प्रोग्राम्स विद अदर एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल के से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी यंग जनरेशन से बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही जनरेशन है जो अपने देश को आगे लेके जाएगी। अगर उनमें सही विचार अगर ये टाइम में मिलेंगे उनको, तो उनका मार्गक्रमण भी अच्छा होगा, और वो खाली उनके लिए, खुद के लिए नहीं, अपने देश के लिए एक अच्छा साबित होगा। फिल्म का हम लोग जो अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करें इधर और देशों को। हम लोग दूसरे देशों का टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं है। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने टेक्नोलॉजिस्ट है, वो इंडिया में ही, जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो मुझे लगता है कि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम अगर अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी यूज हो जाएगा, तो एक तो यहाँ के यूथ लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे, और क्रिएटिव उनका आनंद भी मिलेगा, क्रिएटिव करने का, काम करने का। Yeah, thank you so much, sir, for joining with us today. And I would like to tell our audience that today's episode is ending here. For more updates and for new episodes, stay tuned with Maza Samrajya. And we'll be meeting soon with next and new expert in new field. Till then, take care and stay tuned with Maza Samrajya. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद आपको भी और माजा साम्राज्य को भी। Thank you, sir.